Hello everyone, welcome back. Hope you all are doing good. And today I will discuss order of an element. Order of a group मैंने आपको बताया था previous lectures में. And order of an element and order of a group are different. Order of a group is the number of elements of a group is the number of elements in that group. For example, if we talk about Z4, a group under addition modulo 4, then the elements of this Z4 are 0, 1, 2 and 3. I told you that the elements in Zn are 1, 0, 1, 2 up to n minus 1. So the order of group Z4, order of Z4 is 4. The order of group Zn is equal to n. So in Z4 the number of elements are 1, 2, 3 and 4. The number of elements in that group is the order of the group. But if we talk about order of an element, what do you mean by order of an element? Means like order of 0, order of 1, order of 2, order of 3. इंडिविजुअल एलिमेंट्स का ऑर्डर हमें निकालना है. तो हम कैसे देखेंगे? ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट A in the group G is the list positive integer n such that a to the power n is equal to e. It is in respect to multiplication, and if we are talking about addition, then in additive notation it would be n into a equal to 0. 0 is the identity element in case of addition, and if such n doesn't exist, if ऐसा कोई n मिलेगा ही नहीं, then the order of that element is infinity. Okay, now let it understand by an example. Suppose in Z4 the elements are 0, 1, 2 and 3. And let's talk about the order of 0. Since 0 is the identity element itself, then order of the identity element is 1. Then order of 1. See यहाँ पे क्या बोल रहा है? n into a equal to 0. This is the operation, not multiplication. Here it is in respect to addition operation. So under addition ये क्या होगा? 1 की जब हम बात करें तो हमें मिलना चाहिए 0. 0 कब मिलेगा? जब ये 4 हो जाए, तब हम लोग 4 से 4 को आइडेंटिटी एलिमेंट मिला 1 + 1 + 1 + 1, दैट इज़ 4 into 1. इट विल बी 0. ओके, तो यहाँ हम लोग को 4 टाइम्स 1 ऐड करना हो रहा है, तो हम लोग को 4 मिल रहा है. एंड अगर 4 मिला तो Z4 में 4 क्या है? अगर फिर से एक 4 नहीं आता है, मतलब 4 क्या है? वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि 4 - 4 इज़ 0. ठीक है. सिमिलरली ऑर्डर ऑफ 2 + 2 मीन्स 2 into 2 इज़ 4. 4 आया तो 2 into 2, दिस इज 0, मीन्स ऑर्डर ऑफ 2 इज़ 2. ऑर्डर ऑफ 1 इज़ 4. ऑर्डर ऑफ 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12. 12 इज़ 4 से डिवाइड होगा, तो इस केस में भी 0 मिला. देन ऑर्डर ऑफ 3 इज़ 4. ये समझ में आया? ऐसे हम लोग को ऑर्डर फाइंड करना है. मीन्स अगर इस ग्रुप में क्या हो रहा है, 4 अगर आ रहा है तो हम लोग को आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिलेगा. ठीक है, तो 0 मिलेगा. इसका मतलब कि n टाइम्स a अगर 0 है तो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? एलिमेंट का n हो जाएगा. और एक चीज़, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 in Z4 is, number of element of order 1 is, order of 0 is 1. तो order is 1 for the element 0. Number of element of order 1 in Z4 is 1. Number of elements of order 2, 1, only 2 has the order 2. And number of elements of order 4, 4 ऑर्डर का कितना एलिमेंट्स है इसमें? 3 का ऑर्डर भी 4 है और 1 का ऑर्डर भी 4 है. तो दे आर 2 एलिमेंट्स 1 and 3 ऑफ ऑर्डर 4 इन Z4. ओके, आई एम सॉरी, इट इज़ 1 ना, देर इज़ ओनली 1 एलिमेंट 2 ऑफ ऑर्डर 2. तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? अगर हम इसको सम करें, वी आर गेटिंग 4. मीन्स द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप इज़ 4 एंड इंडिविजुअल
नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर भी हम लोग निकाल सकते हैं. सो देयर इज़ अ फॉर्मूला. इफ़ D डिवाइड्स N then the number of elements of order D in Zn is equal to phi D. ये क्या है? आयलर फंक्शन. बात हुई Z4 की. इफ़ वी टॉक अबाउट U10, ये भी मैंने आपको बताया था. दिस इज़ अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो. U10 के एलिमेंट्स कैसे होंगे? 1 that are prime to 10 and GCD of xn is 1 and x is less than equal to n and greater than equal to 1. This is the definition of the group. Okay, 1 3 4 5 no, 6 no, 7 8 no, 9. Okay, these 4 elements will be in U10. Now order of UN is phi n. This is Euler function. ये आपको पता होगा कैसे हम लोग निकालते हैं. Some formulas are there. Phi p means where p is prime. Phi p is p. Phi p minus 1. Phi p is p minus 1. Phi p square is p square minus p. That is phi p. K is p to the power k minus p to the power k minus 1. Like this we find p to the power n. Suppose these are the factors up to, then it will be n into 1 minus 1 by p to the power k1, like this. Okay, some formula is there. तो अब अगर हम लोग बात करते हैं U10 की, तो phi 10 इज़ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप U10. phi 10 कितना होगा? phi 10 इज़, पहले हम लोग क्या करेंगे? प्राइम में ब्रेक कर लेंगे. 2 इंटू 5 इज़ 10. 2 and 5 आर प्राइम नंबर्स. देन phi 2 इंटू 5 5. phi 2 इंटू 5 इज इक्वल टू phi 2 इंटू 5 5. दिस इज प्राइम, दिस इज प्राइम. phi p इज p minus 1 means phi 2 is 2 minus 1 1 and phi 5 is 5 minus 1 4 means 5 phi 10 is 4. Okay, so the order of group U10 is 4. Now if we talk about the order of element in the group, order of element 3. Order of 3 क्या होगा? Such that we get 3 to the power n is 1. यहाँ आइडेंटिटी आएगी. आइडेंटिटी इज़ 1 in case of multiplication and this n will be the order of the element 3 if it is the least positive integer such that 3 to the power n equal to 1 means 3 to the power 3 into 3 is 9. 9 से तो 1 मिलेगा नहीं. फिर इंटू 3 करेंगे 27. फिर इंटू 3 करेंगे देन वी गेट 81. ओके, 81 को अगर हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं तो हमें 1 मिलता है. मीन्स 3 टू द पावर 4 हमें 1 मिल रहा है. तो हियर n इज इक्वल टू 4 मीन्स ऑर्डर ऑफ 3 इज़ 4. ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ 3 4 हो गया. सिमिलरली वी कैन फाइंड द ऑर्डर ऑफ द अदर एलिमेंट्स लाइक 7 and 9. And this is very important, you should note it down. If D divides n then the number of elements of order D in Zn is phi D. phi D हम लोग निकालेंगे. और एक चीज़, अगर D n को डिवाइड नहीं करता है तो there is no element of that order in the group. Okay, like in Z4 3 doesn't divide 4 means there is no element of order 3 in Z4. ठीक है, तो ये important है. Now if we talk about dihedral group, मैंने आपको dihedral group भी बताया है Dn and order of dihedral group is 2n. ठीक है, तो इसमें भी एक मेन फार्मूला है. if 2 divides n then if the number of elements of order 2 in Dn is equal to n plus 1 if n is even and n if n is odd.
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। और इफ़ d डज नॉट इक्वल टू 2, अगर 2 को छोड़ के कुछ और लेते हैं और वो n को डिवाइड करता है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर d इज़ 5d, okay, order of element order in Dn is 5d. Like example, suppose D4 में अगर चेक करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 here 2 divides 4, so in this case we have the number of elements of order is n plus 1. n plus 1 means here n is 4, so there are 5 elements of order 2 in D4, okay. And if we talk about the any other order like other than 2, then it will be 5 of D. ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आपकी नेट एग्ज़ाम की डेट्स भी आउट हुई हैं, 11 नवंबर आई थिंक इज़ द डेट, एंड यू शुड प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, एंड यू शुड अलॉन्ग विद दैट यू शुड गो थ्रू द थ्योरी पार्ट ऑल्सो। एंड कोशिश करूँगी कि आपके एग्ज़ाम तक मैं आपको मैक्सिमम पोर्शन बता पाऊँ, कवर कर पाऊँ, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड थिंग्स, एंड माई ओनली सजेशन इज़ गो थ्रू द क्वेश्चंस रिपीटेडली, यू शुड सॉल्व एंड रीसॉल्व द क्वेश्चंस। तो इससे आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी थ्योरी एंड क्वेश्चन। सो आफ्टर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट लेट्स कम टू द सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप। सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप क्या होता है? इफ़ अ सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G इज इटसेल्फ अ ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ G, देन H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G। किसी भी ग्रुप का अगर हम सबसेट लेते हैं और वो सबसेट जो ग्रुप में G में जो ऑपरेशन डिफाइंड है अंडर द सेम ऑपरेशन, इफ़ दैट सबसेट ऑल्सो satisfies the conditions of the group, then that H is a subgroup of G. So there are two type of test for a subgroup. One step subgroup test, one step means एक ही स्टेप में आप चेक कर सकते हैं कि वो सब ग्रुप होगा या नहीं, एंड देयर इज़ अ 2 step subgroup test in which there are 2 steps to check whether it is a subgroup or not. Let's come to the 1 step test. Let G be a group and H is a non-empty subset of G, then H is a subgroup of G if AB inverse belongs to H whenever A and B are in H. Means अगर कोई ग्रुप है G और H उसका कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, तो वो सब ग्रुप कब होगा? जब ए बी इन्वर्स बिलोंग करे H में, जब भी A और B H में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ। सपोज G is an abelian group, it is given, and H is given as X belongs to G such that X square equal to E. It is the definition of the H. Okay, now first it should be non-empty. तो पहले देखिए E square equal to E होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमेशा होगी, तो ये ग्रुप H क्या हो गया? नॉन-एम्प्टी। Now we have to prove that AB inverse belongs to H whenever AB belongs to H. तो इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर A H में है तो क्या होगा? A स्क्वायर इक्वल टू E, एंड अगर B भी H में है तो B स्क्वायर भी क्या होगा? E। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है? AB इन्वर्स H में हो, तो AB इन्वर्स H में होने के लिए क्या होगा? AB इन्वर्स का स्क्वायर E होना चाहिए। ओके, ये होगा तब तो वो एलिमेंट उस ग्रुप में बिलोंग करेगा, H में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है हमें। नाउ सी G इज़ एन अबेलियन ग्रुप। G अगर अबेलियन ग्रुप है तो AB इन्वर्स के स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? AB इन्वर्स इंटू AB इन्वर्स, एंड सिंस इट इज़ अबेलियन AB इन्वर्स B इन्वर्स A। हम लोग इसको अबेलियन क्या होता है? AB इक्वल टू BA, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, A B इन्वर्स स्क्वायर, then A can be taken this side, A square B inverse square. Okay, A square is E and B inverse square is E. ठीक है,
एक स्टेप मिस हो रहा है। हम इसको अब क्या लिख सकते हैं, ए अगर इधर आया तो ए स्क्वायर और इसको बी स्क्वायर का इन्वर्स, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर ई है और बी स्क्वायर भी ई है, ई इन्वर्स इज ई, ओके। तो ये क्या यहाँ से हमें मिला, ए बी इन्वर्स स्क्वायर ई, इट इज़ सेटिस्फाइंग द कंडीशन और डेफिनेशन ऑफ एच, सो इट इज़ इन एच। तो ये वन स्टेप टेस्ट से क्या हो गया, एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। और एक टू स्टेप टेस्ट भी होता है। तो टू स्टेप टेस्ट में आपको जस्ट आई विल टेल यू द like G be a group and H is a two step subgroup test. Let G be a group, H is a non-empty subset of G, then H is a subgroup of G if A B belongs to H, whenever A and B belongs to H, and means closed under multiplication. And the second test condition is A inverse belongs to H whenever A belongs to H, means इन्वर्स भी होना चाहिए। तो कुछ नहीं है, ये दोनों को अगर हम कंबाइन करके देखें तो ये यही फॉर्म है जो वन स्टेप टेस्ट में हमने पढ़ा। इट इज़ जस्ट अ टू स्टेप टू चेक द प्रोसेस और इट इज़ जस्ट इन अ वन स्टेप, बट द थिंग इज सेम इन बोथ द टेस्ट, ओके। सो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको परम्यूटेशन ग्रुप बताऊंगी। परम्यूटेशन ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट में उससे क्वेश्चंस पूछा जाता है एंड आपके एग्ज़ाम्स की डेट भी मोस्ट प्रोबेबली आई है 11 नवंबर आई थिंक। तो तब तक आपके पास अभी टाइम है, आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कीजिए एंड गो थ्रू द थ्योरी पार्ट। एंड थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो।